देखो अगला टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। एक्चुअली मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, रेडिएशन, ये तीन मोड्स असी अज्यूम करने हैं। जिहड़ा कन्वैक्शन मोड है ये गैसेस ते लिक्विड्स दे विच हुंदा। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸੋਲਿਡਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। फर्क समझने के लिए देख, अगर मैं तेरे को एक सॉलिड रॉड है, हुण ये जिहड़ी सॉलिड रॉड है ये कादी बनी हो सकती है, मैटल दी। मैटल दी भी बनी हो सकती है, वुड दी भी, लकड़ दी भी सोटी हो सकती है है ना। तो आप मैटल के नाल गल समझिए। हुण आ मैटल दी देखो एक लंबी रॉड है, तो की कीता एक साइड दी अग च पाती है ना। तो इधरों तू हाथ नाल पकड़िया होया, थोड़ी देर बाद तेनू की लगेगा भी आ साइड भी गर्म हो गई। हुण इहदा मतलब आ जिहड़ी हीट है वो इस एंड तो इस एंड तक ट्रांसफर हो गई है। कितना हुई है? तो हुण बेटा क्योंकि ये सॉलिड है इहदे च कन्वैक्शन तो होनी नहीं, कंडक्शन ही होनी मेनली। कितना हुई? एक्चुअली इस मेटल दे जिन्ने भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है जिन्हां तो मिलके बनिया वो एक दूजे तो फिक्स्ड डिस्टेंस ते है। अच्छा हुण हुंदा की है, जदों इन्हां नूं हीट मिलदी है तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे और इन्हां दा जिहड़ा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब जे तां घट टैंपरेचर है फिर इदां वाइब्रेट करेंगे, जे ज्यादा टैंपरेचर है फिर इदां वाइब्रेट करेंगे, मतलब इन्हां दा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो हुण बेटा ये क्योंकि एक दूसरे के नाल जुड़े हुए हैं तो जदों इहदा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा
मतलब ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। तो इस तरीके नाल स्टेप बाय स्टेप एनर्जी अगे जाएगी। तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ गर्म होके फैल के हल्का होके ऊपर ਨੂੰ चला गया। तो इस खाली हुई जगह ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, तो हीट ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਪਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਿਹੜੀ स्पीड हीट ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਜੋ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ forced convection। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਰਸਡ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੱਖਾ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੋ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ। तो आज ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। तो ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। देखो देखो एक गल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ,
कंटेनर दे विच तुसी बर्फ पाती, बर्फ पा के कंटेनर च, है ना, ते तुसी उस कंटेनर नूं चार उपरों ढक्कन भी लगाता, पर थोड़ी देर बाद देखिया कि बर्फ पिघल गई। इहदा मतलब की होया कि बर्फ नूं पिघलन लई हीट मिल गई, और वो हीट आई किधरों है, जिहड़ियां कंटेनर दीयां दीवारां हैं, बॉटम है, लिड है, ढक्कन है, इहदे थ्रू निकल के आई है, हीट ट्रांसफर हो गया। हुण क्योंकि कंटेनर दीयां दीवारां, ढक्कन, बॉटम ये सारा सॉलिड है, तो इत्थे हीट कितना ट्रांसफर हुई, किहड़ा मोड हो सकता, कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हुई। ठीक है। अच्छा, हुण बेटा जिस तरह तुसी लोग गल नूं कंपेयर करके, कंपैरिजन करके याद रखना सौखा हो जाता, जिस तरह तुसी लोग +2 च एक टॉपिक पढ़ते हैं करंट, इलैक्ट्रिक करंट। करंट का कल्ले करंट वर्ड का मतलब हुंदा फ्लो, टू फ्लो, फ्लो करना। इलैक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, तो इलैक्ट्रिक करंट का पूरा नाम इलैक्ट्रिक करंट है, उसका मतलब है चार्ज का फ्लो करना, है ना। और आप देखते हैं कि किसी भी सर्किट च जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट है, चार्ज का फ्लो है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का इलैक्ट्रिक करंट नाल की रिलेशन है, तो वो अगर असी सोचिए नाल उधरों भी तैयारी हो जानी साडी, तो तुसी कहोगे कि इलैक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल डिफरेंस नाल रिलेशन जो है वो है V is equal to IR, मतलब R रेजिस्टेंस है, इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है। हुण बेटा आ जिहड़ा करंट है ये इलैक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट है इनू आपां dq बाय dt लिख सकते हैं, dq चार्ज हो जाएगा। हुण असी टॉपिक पढ़ रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ हीट। चार्ज नू हटा के कौन आ गया, हीट आ गई। तो जिस तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नू इलैक्ट्रिक करंट कहने हैं, उदा ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नू, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम नू असी की कह देंगे, थर्मल करंट, हीट करंट। तो मतलब आही फार्मूला काम आ जाना, इहदे बराबर ही आपां लिख देना, बस H का मतलब हीट, थर्मल करंट। तो इत्थे आपां Q कैपिटल लिख सकते हैं, हीट का सिंबल dq बाय dt सुनी जाओगे। अच्छा, हुण इलैक्ट्रिक करंट क्यों सी, पोटेंशियल डिफरेंस करके, है ना। तो फिर हीट करंट क्यों है, टेम्परेचर डिफरेंस करके। कादे करके, हाँ, इसका मतलब आ जिहड़ा हीट करंट है ये दो पॉइंट्स दे विच की है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, dt। ठीक है। सो इसका मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह की लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। करंट की जगह की लिख सकते हैं, थर्मल करंट। आ की है ये रेजिस्टेंस की फ्लो ऑफ चार्जेस लई रुकावट। हुण साडा इत्थे कौन फ्लो कर रहा, हीट। तो ये रेजिस्टेंस की इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस, साडी आ जानी थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। हुण गल नूं सुनी जाओ। हुण बेटा IH की बन गया, अच्छा। हुण क्योंकि असी करंट बारे जानते हैं, उधरों का सौखा किधर लियाना, शिफ्ट करना। हुण सानू अगर कोई कहे
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਆਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰੋ ਐਲ ਬਾਈ ਐਲ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ L A ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਣਾ? ਹਾਂ, ਪਰ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ K। और आ ਜਿਹੜਾ थर्मल कंडक्टिविटी ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿविटी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो अच्छा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ dx ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ IH dt dx over K ऊपर चल जाऊंगा तो A भी ऊपर चला गया, dt by dx ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो और IH की जगह आप की लिख सकते हैं तो किसी भी सबस्टांस दे विचों जदों कंडक्शन करके हीट फ्लो करती है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कादे ते डिपेंड करता? के दा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बेटा डिपेंड करता नेचर ऑफ मटीरियल। और एक गल याद रखनी है तुसी लोगों ने कि जेड़ा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो गैसेस लई बहुत ही घट होता। मतलब जेड़ियां गैसेस है उन्हां नूं असीं कहने आ बैड थर्मल कंडक्टर्स। हवा भी उन्हां चों ही आ गई, मतलब हवा दे विच जिहड़ी हीट ट्रांसफर हुंदी है ना, उस हीट ट्रांसफर च बहुत घट हिस्सा कंट्रीब्यूशन कंडक्टिविटी दी है। क्यों? क्योंकि एयर गैस है और गैस बैड थर्मल कंडक्टर है। समझ आई गल?
ठीक है। हुण पुत्र ये जिहड़ा टॉपिक है इहदे विच देखो दो गल्लां दा फर्क है। एक तां जिहड़ी ना गैस है या लिक्विड है उन्हां बारे असीं ये कहने आ कि वो बैड थर्मल कंडक्टर्स है, मतलब उन्हां विच हीट ट्रांसफर जिहड़ी हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਡ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਬਟ ਗੁੱਡ ਥਰਮਲ ਕਨਵੈਕਟਰ। ਕਨਵੈਕਟਰ ਵਧੀਆ। तो देखो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ खास करके सर्दियां तो आपको ठंड घट लगती है जिदा ही हवा चलनी शुरू करती है, क्योंकि जो हवा चल रही का मतलब कन्वैक्शन शुरू हो गई तो साडी बॉडी चो हीट लॉस होना शुरू हो गया बाय कन्वैक्शन ज्यादा। तो जब तक साडे आले दुआले हवा खड़ी है मतलब ज्यादा तेजी नाल नहीं है ना फ्लो कर रही, तब तक जिहड़ा कन्वैक्शन वो हो नहीं रही। तो कंडक्शन ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਬੈਡ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। अच्छा, और ये गल तुसी जान चुके हैं कि किसी भी सबस्टांस का जिहड़ा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है जिन्ना ज्यादा होएगा वो उन्ना गुड थर्मल कंडक्टर होएगा, जिन्ना घट के होएगा उन्ना वो बैड थर्मल कंडक्टर होएगा। और हुण ये रिजल्ट बड़ा काम दा वा साडे। प्लस इस तो इलावा हुण अगली जिहड़ी गल आन लगी पुत देखो, क्योंकि इहनूं मैं जोड़ता वा करंट इलैक्ट्रिसिटी नाल। हुण जिद्दां तुहानूं दस्सिया जांदा कि अगर मान लो तुहाडे कोल दो रजिस्टर्स है सीरीज, तो सीरीज च दो रजिस्टर्स की की खासियत है? दोनों दे विच करंट की वैल्यू सेम हो। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने दो स्लैब्स है और दोनों स्लैब्स आपस च इदां जोड़ियां कि उन्हां दे विच जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा है ना वो कितना कर रहा अपना देखियो एक मिनट। तो इत्थे टर्म उन्हें स्लैब यूज कर लेनी है। तो स्लैब की रेजिस्टेंस कितना कढ सकते हैं पुत्र? आ फार्मूला केडी रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ K ਕੀ ਹੈ? स्लैब ਦੇ मटीरियल ਦਾ कोएफिशिएंट ऑफ स्लैब की थिकनेस और A हाँ ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਰਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ रेजिस्टेंस ਦਾ फार्मूला है चाहे आ या चाहे आ है आ रेजिस्टिविटी की टर्म चाहे कंडक्टिविटी की टर्म। तो जो तुसी ये फार्मूला लगाना प्लस टू ही लगाना। हुण जिद्दां मान लो मैं तुहानूं कहना आ एक स्लैब है, देखियो ध्यान दीजिए। मान लो आ है L, आ है B, आ है H, यानी हर साइड स्पेसिफाई करते। हुण अगर मैं तुहानूं कहां चाहे तुसी इलैक्ट्रिसिटी वालों समझ लो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी वालों, दोनों इको चीजें हैं। फर्क यह है कि जे मैं कहां कि आ जिहड़ा लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड का टेंपरेचर है T प्लस dt, राइट एंड का टेंपरेचर है T। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ थर्मल करंट होएगा वो इस तरफ होएगा। ठीक है। हुण अगर मैं तुहानूं कहां भी ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस दसो कितनी होएगी? थर्मल रेजिस्टेंस 1/K। K की है इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टर। ऊपर की लेने आपां लेंथ, पता का मतलब की है? लेंथ का मतलब ये है कि जेडे दो एंड्स दे विच टेंपरेचर डिफरेंस है उन्हां दे विचली दूरी
डायरेक्शन की होना कि जिस डायरेक्शन च करंट है ना ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर उस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ਜਿਹੜਾ फेस है ਉਹਦਾ एरिया आ वाला एरिया बी इंटू क्योंकि रेक्टेंगल। अच्छा हुण आ देखो हुण मान लो आही डायग्राम से पर उन्हें की कहता कि टेंपरेचर डिफरेंस इतना इट मीन्स हुण IH तो हुण IH जेड़ा हुण लाल वाला वा इहदे च RH की आऊ 1/k लेंथ आ नहीं है हुण H over आ एरिया ना वाला L into B मतलब इतना समझ होनी चाहिए अपन घोटे नहीं लाने भी L लिखता ये लिखता उसका मतलब है यही इलेक्ट्रिसिटी वाले केस भी है। तो ये होगी साडी रेजिस्टेंस लिखने का फार्मूला है ना। तो कितना लिखना है नोट कर लो। मैं दो कलर्स यूज किए हैं तुसी काले वाले ਨੂੰ 1 कह लो लाल वाले ਨੂੰ 2 कह के कर लो ना भी उस तरफ रेजिस्टेंस कितनी है ताकि फर्क पता लग जाए। ये देखो आप पता लग गया। एक होर इंफॉर्मेशन जी तुहानू याद रखनी चाहिए है जरूरी है क्योंकि जो असी बुक पढ़ांगे वो टर्म्स आंदियां एक आती है ट्रांजिएंट स्टेट एक टर्म आऊगी स्टेडी स्टेट। आ देखो हुण अगर मान लो आ एक रॉड है इस रॉड का लेफ्ट एंड T1 टेंपरेचर ते है राइट एंड T2 ते और T1 ग्रेटर देन T2 है मतलब T1 टेंपरेचर ज्यादा व T2 घट है। ठीक है तो इसका मतलब इस रॉड के विचों की फ्लो करेगी हीट फ्लो करेगी और हीट फ्लो पर यूनिट टाइम नु असी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कह देते हैं 1 सेकंड फ्लो करने वाली हीट। अच्छा आ ट्रांजिएंट स्टेट है आ स्टेडी स्टेट है दोनों च फर्क दसन लई मैं फिर T1
फ्लो करे। हुण दोनों च फर्क की है पुत्र, देखो कि ट्रांजिएंट स्टेट च ना जदों किसी मटीरियल च हीट अगे बढ़ती है, ट्रांसफर होंदी है, तो आपां की करते हैं, गल नूं समझण लई इस रॉड के 4 हिस्से करते, 4 हिस्से करते, है ना। हुण गल समझो, मान लो आज जिथे मैं डॉट लाया ना, इथे सपोज करो थर्मामीटर लगा, की लगा, किन्ने, 3 थर्मामीटर्स लगाए, लगाए। ट्रांजिएंट स्टेट च की होएगा, जदों हीट अगे बढ़ेगी सबस्टांस चों, तां अगे बढ़ती हुई हीट पहला फर्स्ट पोर्शन चो लंघेगी, फिर सैकेंड चो, फिर थर्ड चो, फिर फोर्थ चो। तां ट्रांजिएंट स्टेट च जदों हीट मटीरियल के अलग अलग पोर्शन चो लंघ के अगे बढ़ रही है, तां हर पोर्शन कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा, बाकी बची हीट नूं अगे शिफ्ट कर रहे, समझ गए। जबकि स्टैडी स्टेट की होना पुत्र, जदों हीट ने सबस्टांस च अगे बढ़ना, तां किसी भी पोर्शन ने हीट नूं एब्जॉर्ब नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफर ही करना, अगे नूं ही भेजना। तो यह फर्क उहदे नाल होएगा कि उहदे नाल यह होएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट च जिस मीडियम जो हीट अगे बढ़ रही है, मीडियम का हर हिस्सा थोड़ी बहुत हीट नूं की करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, नाल अगे भेजेगा भी। तो हर पोर्शन का टैंपरेचर टाइम के नाल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिहड़ी चीज ने हीट एब्जॉर्ब करनी, उसका टैंपरेचर जनरली इंक्रीज करता है। सो इसका मतलब ट्रांजिएंट स्टेट च की होएगा भी आ जिहड़ियां तीनों डॉट्स है, इन्हां दा टैंपरेचर टाइम दे नाल ਵਧੇਗਾ, पर इन्हां तीनों डॉट्स का टैंपरेचर तिन्ना का कांस्टेंट रहेगा। पर एक गल होर ध्यान रखनी है, वो ये स्टैडी स्टेट आ टैंपरेचर T3 रहना, ना ਵਧਣਾ ना घटना, T4 ही रहना है, T5 ही रहना। पर एक गल क्लियर है कि हीट हमेशा हायर टू लोअर टैंपरेचर वाल जानी है। इसका मतलब सब तो ज्यादा टैंपरेचर T1 होना, T3 होना, तो ये नहीं कहना कि तीनों टैंपरेचर बराबर नहीं है, कांस्टेंट है, समझ गए। तो क्योंकि जो थ्योरी पढ़ोगे तो उत्थे एक वर्डिंग आती है स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट का मतलब होंदा कि असी इस वक्त जिहड़ा सबस्टांस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, और टैंपरेचर ਵਧਣ ਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ mc ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, मतलब ਉੱਥੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब स्टैडी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी प्लेस इंपॉर्टेंट। जबकि ट्रांजिएंट स्टेट च बहुत हीट एब्जॉर्ब भी होनी है, तो स्पेसिफिक हीट the coefficient of thermal conductivity और असी सिर्फ हीट ट्रांसफर जो डिस्कस करनी है तो उदों स्टैडी स्टेट ही कंसीडर होनी है।
और स्टैडी स्टेट दे विच की होना बेटा, ये दसता वा T3 T4 T5 ये टाइम दे नाल चेंज नहीं होने, पर आपस च बराबर नहीं है, ध्यान च रखना। ठीक है, फिर पुत्र जदों तुहाडे सामने बेटा एक स्लैब, ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿविटी K1 है, आ ਇਹਦੀ थिकनेस है L1 कर लो, और आ एरिया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ दूसरी स्लैब इधर जुड़ी, तो ये मटेरियल अलग है K2, ਇਹਦੀ लेंथ या थिकनेस L2 है, एरिया सेम ही है। हुण अगर आपां आ जिहड़ा साइड है ਇਹਦਾ टेंपरेचर है T1, ਇਹਦਾ टेंपरेचर है T2, ਤੇ ਜੇ T2 ਲੈਸ ਦੈਨ T1 है, ਇਹਦਾ मतलब हीट फ्लो करेगी इस तरफ, प्लस जदों हीट इस तरफ जा रही है तो लेफ्ट एंड तो राइट एंड तक हीट नू जान लई इक्को रस्ता मिलिया, मतलब इक्को रस्ते च दोनों स्लैब आ रही हैं। जदों दो रजिस्टर्स इक्को रस्ते च ही आन करंट दे तो वो सीरीज च हुंदे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन च पुत जिहड़ा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब करंट है, थर्मल करंट, टोटल करंट भी वही है जितना करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, समझ आ रही गल। हुण दोबारा गल नूं सुनियो पुत, आ देखो आ जिहड़ा लाल रंग दा मैं, तो आ जिहड़ा फेस है, ये फेस लेफ्ट और राइट दोनों लई कॉमन है, कॉमन इंटरफेस। तो मान लो इसका टेंपरेचर है T, क्योंकि जिधर नूं हीट ने जाना ना उस तरफ टेंपरेचर की हो जाना, घटी जाना, इसका मतलब आ जिहड़ा इंटरफेस है इसका टेंपरेचर T1 तो घट होना पर T2 तो ज्यादा। हुण जे मैनूं कोई कहे कि आ T टेंपरेचर कड्डो, मतलब ये दो स्लैब्स सीरीज च, तो उन्हां दे कॉमन इंटरफेस का टेंपरेचर कितना कड्डिया पूछा जा सकता। तो उहदा जवाब की है पुत्र, देखो जे तुसी इस पोर्शन नूं देखो है ना, आ पोर्शन
ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ डिफरेंट है कि सेम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है, सीरीज है ना। अच्छा, और एक बात सुनो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू फर्स्ट स्लैब या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सेकंड स्लैब, ये दोनों सेम है। जेड़ा टोटल है वो कितना कटांगे आप पुत्र? इत्थों भी आ सकता, इत्थों भी आ सकता। हुण इनू पकड़िए, ये कितना लिखांगे आप? डी क्यू बाई डी टी कितना लिख देने हैं? के ए डी टी, डी टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। कितना है टेम्परेचर डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, जबकि इहदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना लिखांगे? A2 A टेम्परेचर डिफरेंस हुण इन्हां नूं सॉल्व करके तुसीं T निकाल सकते हैं। T का टेम्परेचर है, कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर, ये निकालना पूछा जा सकता। एक तां नोट करो इत्थे, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग भी हो सकता है? नहीं सेम ही आएगा। जे जे मान लो अलग भी है ना, तां भी सानू सेम मनना पैना छोटे वाला, पर वो होना नहीं। ऐसे सॉरी ना हमने करते थे, हाँ छोटे वाली वाली छोटे वाला। तो एक ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਲੈਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। दूसरा आ देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन च पुत्र जी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो कितना आती है? R1 प्लस R2 है ना। और इधर देखियो जी R1 है वो इस स्लैब की रेजिस्टेंस है कितनी? 1 बाय K1 L1 ओवर R2 ते जे आपां इस पूरी स्लैब नूं सिंगल मटीरियल दी मनीए तो फिर यदि टोटल रेजिस्टेंस की होनी सी 1 ओवर पता लगा है कितना? KS की है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज। तो आपां KS
निकाल सकते हैं। तो 1/KS की आ गया, L1/K1 प्लस L2/K2 ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਲੈਬਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਹੀਟ ਆਫ ਫਲੋ ਟੋਟਲ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। तो कितना कट सकते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तुसी IH कितना कटोगे, जे ता पूरी स्लैब नु सिंगल पीस मनना, फिर आप लिखांगे थे KS, और KS की वैल्यू इथों आऊगी इनटू A ते आ टेंपरेचर डिफरेंस कितना ते L1 प्लस है। जे असी पहली तो देखना है तो फिर लिखांगे K1A, जे आप इथों देखना था मतलब सीरीज दे विच असी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इतना भी कट सकते, इतना भी इतना, पर जे इथों कटना तो फिर टी आ वाला की जाएगा, तो जे आप इथों कटना तो फिर KS चाहिए, है ना। ये सारे रिजल्ट्स इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, दूसरा केस है पुत्र इन पैरेलल वाला। इन पैरेलल मान लो आप स्लैब है, दूसरी स्लैब आया, तो लेफ्ट हैंड टेंपरेचर T1 ते राइट हैंड T2। हुन आ जेडी स्लैब है नंबर 1, एदा एरिया है A1, एदा एरिया है क्रॉस सेक्शन A2, थिकनेस दोनों दी मटीरियल अलग है। एदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है IH1 वो कितना कटांगे अपन
K1 A1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ K2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਇਨ पैरेलल कॉम्बिनेशन ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਮੰਨ ਲਈਏ, देखो आप पता लगा Kp की है इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कितना होगा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखो आरपी की होता सॉरी 1/rp की होता तो 1/r1 r1 का होता वा उल्टा नहीं हो गया r1 की होता 1/k1 तो k1 ऊपर चल जाना तो आही लिखांगे कि नहीं। और इधर Kp आयता है ना। तो इन्हां दे बिहाफ ते न्यूमेरिकल्स आने हैं आ सकते हैं ट्राई करने पैंदे अपन। ठीक है फिर बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਜੁੜਨਾ ਵਾ ਲਿਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ time taken for the formation of ice layer over the surface of lake। मान लो लेक है तो ये पानी है जदों आ वाला टेंपरेचर सराउंडिंग का मन हो जाना सपोज कितना हो गया -10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस तो इस लेक के ऊपर बर्फ जम जानी। ठीक है तो
ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ थीटा और ये माइनस च टेंपरेचर काले च हाँ ये माइनस च नेगेटिव तो हुण बर्फ क्यों जमनी है क्योंकि जदों किसी भी लेक दे विच पानी बर्फ बनना शुरू हुंदा तो ये गल नोट कर लेना पानी की एक मतलब पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है एनॉमलस बिहेवियर है कि पानी का नीचे टेंपरेचर हमेशा की रहना 4 डिग्री सेल्सियस ठीक है और जितना जितना आप ऊपर ਨੂੰ जा रहे हैं पानी का टेंपरेचर घट रहा 0 डिग्री वाला है तो अगर आप मान लीजिए देखिए सपोज एक्स की है बर्फ जमी हुई है ना तो एक्स की है इस बर्फ की लेयर की थिकनेस है इस पासे टेंपरेचर कितना माइनस है और आ टेंपरेचर इधर की होना जो बर्फ जमनी है ना अच्छा हुण ये बर्फ की स्लैब नहीं बन गई के की है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस हुण बेटा होना की है क्योंकि आ टेंपरेचर 0 है आ नेगेटिव है तो हीट ने इधर नु जाना तो क्योंकि इस हिस्से ने जब हीट लॉस करना तो ये जेड़ा पानी है 0 डिग्री वाला इन्हें भी अगे बर्फ च कन्वर्ट होना तो मान लो पतली जी ਇਹਦੀ थिकनेस कितनी है ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੇਡਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कितने बराबर एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास तो आ ਜਿਹੜਾ ब्लैक कलर ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੀਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੀਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ dq मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ये बन गया a dx रो l ये हीट कित्थों दी लंघ के गई स्लैब चों तो स्लैब चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की हुंदा dq by dt की हुंदा k a टेंपरेचर डिफरेंस की है 0 माइनस 0 ਵੱਡਾ ਵਾ थीटा छोटा है ना ਤੇ थिकनेस कितनी है x और dq ਦੀ वैल्यू पुट कर देने ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ a rho lf dx over dt is equal to minus k a theta by x तो a ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ माइनस के थीटा इधर निकल गया dt का ला इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना dt नु अलग करता बाकी सब एक पासे करते तो ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਰ इंपॉर्टेंट फार्मूला